Good morning, students. Today we will start with the topic that is the nervous system of our book Comparative Anatomy and Development Biology of Vertebrates. This is a very important chapter from examination point of view, in which we will study the comparative account of the brains of the different vertebrates. Now, first of all, how this nervous system that arise. You all know that the brain is the part of the nervous system. So if we divide the nervous system into parts, it is mainly divided into three parts. First is the central nervous system, another is the peripheral, and the last one is the autonomic nervous system. The central nervous system, that you all know, it includes your brain and the spinal cord. ठीक है, तो ब्रेन जो होता है वो आपका दैट इज प्रोटेक्टेड बाय योर स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम. Next is your peripheral nervous system. Peripheral nervous system is what? It includes the nerves which are extended between the central nervous system and your body parts such as your sense organs and the muscles. It includes your spinal nerves and the cranial nerves. पहले सिलेबस में ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी डिटेल में नहीं है, सिर्फ हमने ब्रेन का ही कंपैरेटिव अकाउंट करना है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपली अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स योर क्रेनियल एंड दी स्पाइनल नर्व्स. नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, it includes the nerves which are joined to the spinal and the cranial nerves and they extend up to the visceral organs. क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के साथ जो भी नर्व्स अटैच्ड होंगी और वो विस्ट्रल ऑर्गन से कनेक्टेड होंगी, दे विल बी इंक्लूडेड अमंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. This autonomic nervous system, it controls our involuntary functions, whereas if we talk about the peripheral nervous system, it controls our voluntary functions, that is the functions which are under our control. Now a little introduction that how this nervous system that arise. We have also discussed this in case of the frog development, that this is the neural plate which is ectodermal in origin. You all know on the dorsal side of the ectoderm, in case of the gastrula, we have seen that the neural plate was there, and below that a small structure was also arising called as the notochord. We have studied the structure in case of the gastrula and also seen in case of our slide. So how slowly the neural plate that start dipping inside, that is it start invaginated, and its corners called as the neural fold, they start growing upward. ये ऊपर की ओर जाएंगे और ये जो नीचे बेंड होगा आपकी न्यूरल प्लेट, जिससे ग्रूव बन जाएगा, जिसे न्यूरल ग्रूव बोलेंगे, और अल्टीमेटली ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड फाइनली this part will detach or delaminate from the upper ectoderm and it will form your neural tube, and the cavity is also seen in the center called as the neurocele, और इसी के नीचे हमारी नोटोकॉर्ड होगी. ये मैंने आपको प्रैक्टिकल्स में भी बताया था कि जो नोटोकॉर्ड होती है बाद में चल के आपका ये जो है वो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको बनाएगी, जो बाद में आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट को, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो चाहे वो ब्रेन हो, उसको प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरुला, ये हमने फ्रॉग का देखा हुआ है. सो दिस इज दी हाउ दैट द नर्वस सिस्टम दैट अराइज. नाउ कमिंग टू दी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है कि ब्रेन जो है वो उसमें ये सारे पार्ट्स होंगे. अब हम देखते हैं कि कैसे बना है. जब हमारा नर्वस सिस्टम अराइज करता है तो शुरू में जो है एक लॉन्ग ट्यूब जैसी जो बनती है, जिसका इंटीरियर पार्ट जो थोड़ा स्वोलन होता है, जिस फॉर्म द ब्रेन्स, एंड द लास्ट पोस्टीरियर पार्ट इज elongated which forms the spinal cord. Now the brain that slowly start differentiated into three parts: the forebrain, midbrain, hindbrain, with the help of the constriction, and the last part that forms the medulla, जो है medulla, जिससे आपका बाद में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट होगी. नीचे साथ ही में आपकी नर्वस जो नोटोकॉर्ड है, दैट विल फॉर्म दी स्केलेटन सिस्टम. इट इज ऑल्सो डेवलपिंग साइड बाय साइड, और अल्टीमेटली आपका इस तरह से एक जनरलाइज स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन का बन जाता है. नाउ अब हम एक छोटा सा टेबल स्टडी करेंगे. इस टेबल से हमें बहुत इजीली जो है वो समझ आ जाएगा कि एक वर्टिब्रेट ब्रेन के जो है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं. If we talk about the division, the vertebrate brain that is divided into three main parts. First is the forebrain called as the prosencephalon. These are the divisions.
first is the prosencephalon, that is from forebrain. Next is the mesencephalon, that is the midbrain, and finally we have the rhombencephalon or the hindbrain. In next column we will show the different subdivision. Now if we talk about the forebrain or the prosencephalon, it is divided into two parts, telencephalon and the डायनसेफेलॉन. बेटा अगर ये हमें जो पूरा का पूरा टेबल मैंने बनाया है, अगर हमें अच्छे से लर्न होगा तो हम किसी भी वर्टिब्रेट ब्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. चाहे पेपर में आपको बर्ड्स का ब्रेन आए, चाहे मैमल का आए, चाहे आपको फिशेस का ब्रेन आए, वो आपको इजिली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक है, टेबल जो है वो एक ट्रिक है जिससे आप किसी भी ब्रेन को जो है वो समझ सकते हैं. ठीक है, सो ये आपको जनरलाइज आइडिया देगा कि वर्टिब्रेट ब्रेन में क्या क्या चीजें आएंगी. तो जैसे ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, याद करना, लर्न करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस टेबल दैट हाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन. नाउ the first part of the brain, that is the prosencephalon, or we call it as the forebrain. It further consists of two parts, telencephalon and the diencephalon. Now telencephalon, the telencephalon, it have further two parts. First is the rhinocephalon and another is the cerebral hemisphere. Let me show you the diagram. This is the diagram. This is the diagram. यहां से लेके यहां तक जो है वो आपका आ जाएगा फोर ब्रेन. ये नेक्स्ट डिवीजन है, दिस इज फॉर द मिड ब्रेन एंड द लास्ट डिवीजन इज फॉर द हाइंड ब्रेन. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा राइनसेफेलॉन. तो राइनसेफेलॉन में क्या आ जाएंगे, ऑप्टिक लोब्स आपके. ये आ गया आपका ऑप्टिक लोब. और कई जो हमारे वर्टिब्रेट ब्रेन है उसमें हमें जो है वो ऑप्टिक ट्रैक भी जो है वो देखने को मिलता है. सो द ऑप्टिक ट्रैक यानी एक लॉन्ग इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जिससे कि ऑप्टिक लोब जो है वो कनेक्टेड होंगे. ये कईयों में होता है, कई में नहीं होता है. ठीक है, फिशेस में हम देखेंगे तो हमें बहुत आपका एक इलांगेटेड जो है वो ऑप्टिक जो है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है वो आपको देखने को मिलेगा. द नेक्स्ट पार्ट इज योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसका अगर हम बात करते हैं उसकी डॉर्सोलेटरल वॉल की, तो डॉर्सोलेटरल वॉल जो वो इतनी थिक नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं पेलियम. जबकि जो उसकी वेंट्रोलेटरल वॉल है वो काफी थिक होती है और उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्रियाटा. राइट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द डायनसेफेलॉन. तो ये है हमारा डायनसेफेलॉन. नाउ योर फोर ब्रेन, द telencephalon that is connected to the diencephalon with the help of a foramen. फोरामेन आप समझते हैं, जब भी मैंने आपको स्केलेटन दिखाया था मैंने आपको फोरामेन्स दिखाए थे वहां पे. तो ब्रेन में फोरामेन होता है लास्ट में, जहां से जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम. वैसे ये एक फोरामेन जो है वो आपके टेलेंसेफेलॉन को डायनसेफेलॉन से कनेक्ट करता है एंड दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज द फोरामेन ऑफ मॉन्ट्रो. नाउ डायनसेफेलॉन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक का पार्ट आपका क्या है, डायनसेफेलॉन. अगर हम इसकी रूफ की बात करें, द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन इट इज कॉल्ड एज द एपीथैलेमस. ठीक है, एपीथैलेमस है और इसके ऊपर फिंगर लाइक जो है वो हमें प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं एंटीरियर कॉर्ड प्लेक्सस. दिस एंटीरियर कॉर्ड प्लेक्सस विल रिलीज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. राइट, इसके अलावा हमारा जो एपिथैलेमस है उसके ऊपर एपीफाइजियल अपरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें कि पैरेटल और पीनियल बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है. ये देख रहे हैं आप, ये पीनियल स्टॉक आपको जो है वो दिखाई दे रहा है. तो कई वर्टिब्रेट ब्रेन में जो है हमें दो अलग अलग बॉडीज नजर आती हैं, एक होगी पीनियल बॉडी और एक होगी पैरेटल बॉडी. Now, if we talk about the sides of the diencephalon, they are called as the thalamus. ये देखो सेक्शन में यहाँ पे दिखाया गया है, ये है आपका डायनसेफेलॉन. इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है एंड वी कॉल देम एज द थैलेमस. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस. एंड द हाइपोथैलेमस दैट पोजेस मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिक क्यास्मा. नाउ व्हाट इज दिस ऑप्टिक क्यास्मा? ऑप्टिक क्यास्मा वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपकी दो जो ऑप्टिक नर्व्स है वो क्रॉस करते हुए जो है वो ब्रेन से आगे निकलेगी.
नेक्स्ट इज जो स्ट्रक्चर है दैट इज द ट्यूबर साइनेरियम. ट्यूबर साइनेरियम यहाँ पे दिखा नहीं है हमें, लेकिन वो मैमेलियन ब्रेन में हम देखें तो हमें बहुत इजीली जो है वो नजर आ जाता है. दिस ट्यूबर साइनेरियम इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड योर ऑप्टिक नर्व्स. Now the next is your mammillary body. Mammillary body is again a structure which is not seen in this diagram, but वो भी जो है वो brain में present होता है और ये tuber salarium के पीछे होता है. So it contains the nucleus for the optic impulses. Now the last structure is your, in case of this is your pituitary body. Pituitary body जो है उसमें क्या आ जाएगा आपका, pituitary body में जो है ये दोनों स्ट्रक्चर आ जाएंगे, दैट इज योर हाइपोफाइसिस एंड योर इन्फंटिबुलम. अब ये दोनों क्या है, ये जो हाइपोफाइसिस है ये तो हमारी आउटग्रोथ आ गई डायनसिफिलॉन की, आपकी डायनसिफिलॉन नीचे की ओर इलोंगेटेड हो रहा है, जबकि जो हमारा ये हमारा जो इन्फंटिबुलम है, ये इन्फंटिबुलम जो है वो अराइज करेगा आपके स्टोमोडियम से. स्टोमोडियम जो है पार्ट ऑफ दी आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का इंटीरियर पार्ट है, उससे ये अराइज करेगा और ये दोनों मिलके दैट इज दी हाइपोफाइसिस एंड द इन्फंटिबुलम, दे कंबाइन टू फॉर्म योर पिट्यूटरी बॉडी. ठीक है, ये जो हाइपोफाइसिस होता है इसको रथकेस पाउच भी जो है वो हम कहते हैं. ठीक है, सो हाइपोफाइसिस that arise from the stomodium, whereas the infundibulum that arise as a downgrowth of the diencephalon, and both they form your pituitary body. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने जो है इस ग्राफ में लिखी हुई हैं ताकि हमें इजी रहे समझने के लिए. जैसे देखो हाइपोथैलेमस में मैंने कहा ऑप्टिक क्यास्मा होता है, ट्यूबर साइनेरियम होता है, मैमेलरी बॉडी होती है, और उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस का. हाइपोथैलेमस इज व्हाट, इट इज द फ्लोर of the diencephalon. It possesses the infundibulum and the hypophysis. Thalamus, these are the sides of the diencephalon, and epithalamus, this is the roof of your diencephalon. ठीक है, so ये आ गए हमारे two parts, diencephalon and telencephalon. These are the two parts of the forebrain. Now coming to the midbrain, ये आ गया हमारा मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन. So the midbrain that consists of two parts, that is the corpora bigemina and cura cerebra. Now let's see where these are present. This is the midbrain that possesses the two parts, that is your corpora bigemina and the cura cerebri. अब इसको हम सेक्शन में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छे से नजर आएगा. तो ये जो आपके कॉर्पोरा बाइजेमिनिया, ये क्या है, बेसिकली आपके ऑप्टिक लोब्स हैं, एंड दिस ऑप्टिक लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ऑन द डॉर्सोलिटरल साइड. ठीक है, ये हमें जो है वो डॉर्सोलिटरल साइड्स पे जो है वो देखने को मिलेंगे. इसके अलावा आगे हमारा क्यूरा सेरिब्राई. क्यूरा सेरिब्राई कहाँ पे होगा, फ्लोर की ओर, यानी कि वेंट्रल साइड पे. अब ये क्यूरा सेरिब्राई क्या है, दीज आर द थिकर नर्वस ट्रैक विच लिंक योर डायनसेफेलॉन टू द हाइंड ब्रेन. ये जो है बेसिकली क्यूरा सेरिब्राई जो है, जैसे यहाँ पे ये क्रस सेरिब्रस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कनेक्ट योर डायनसेफेलॉन टू द हाइंड ब्रेन. नाउ डायनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ द forebrain. So basically this crus cerebrus, these are the nervous tracts which connect the forebrain to the hind brain. Now coming to the last part of your brain. So this last part is called as the hind brain, or we called it as the rhombencephalon. Now what is this rhombencephalon? It is the last part, और इसके बाद हमारा जो है ब्रेन खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टार्ट हो जाता है, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. Now it again have two parts. First is the metacephalon and another is the myelencephalon. Now metacephalon में क्या आ जाएगा आपका cerebellum. ये देख रहे हैं आप cerebellum. Cerebellum it is present on the dorsal side. ठीक है, तो वैसे तो सेरिबेलम जो है ज्यादातर हमारे वर्टिब्रेट्स में ज्यादा इसका जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे अब ह्यूमन की बात करें, तो हमें बहुत अच्छे से, और बर्ड्स में जो है हमारा सेरिबेलम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है. ठीक है, और बहुत इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा. अदरवाइज बाकी वर्टिब्रेट्स में इस जो है इसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छे से नहीं होती है. द नेक्स्ट पार्ट इज द पोनस. Ponus is seen in some of the vertebrate brain, whereas it is absent in most of the vertebrate brain. Now, the next part of the
rhombencephalon, that is the hind brain, is the myelencephalon. Now the myelencephalon is what? It is the medulla oblongata. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? medulla oblongata आ जाएगा. साथ ही में आ जाएगा आपका posterior choroid plexus. posterior choroid plexus क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा फोर ब्रेन में क्या था? anterior choroid plexus. So ये जो posterior choroid plexus है, it is formed by the ingrowth. ठीक है, इन ग्रोथ से जो है वो फोल्ड बन जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, एंड इट विल आल्सो सिक्रीट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन ऑफ द मैमल. हमने अच्छे से पहले इसको लर्न करना. जब हमें ये लर्न हो जाएगा तभी हम बाकी के ब्रेन जो है वो अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं. ठीक है, और इसी चीज को जो है वो टेबुलर फॉर्म में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ. जैसे हम हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन में हमने जो है उसको फर्दर डिवाइड किया मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन में. तो मेटेंसेफेलॉन इज कॉल्ड एज दिस. इसमें हमारे टू पार्ट्स हैं, सेरिबेलम और पोनस. जबकि जो आपका माइलेंसेफेलॉन है वो लास्ट वाला पार्ट, उसमें टू पार्ट्स आ जाएंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड द पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस. सो this is the generalized structure of the brain. Now coming to the cavities, what are the different cavities which are present within the brain? हम इन cavities को देखने के लिए जो है वो स्कोलेडॉन का ब्रेन जो है वो हम देखेंगे, जिसमें बहुत अच्छे से ये नजर आएंगे. ठीक है, so if we talk about the different cavities which is present in the brain, the first cavity is your rhinocele. तो this rhinocele, जिसको हम फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको हम फर्स्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं. वेंट्रिकल ये आपका हार्ट वाला वेंट्रिकल नहीं है. ब्रेन में भी जो कैविटीज होती है उनको वेंट्रिकल्स ही कहते हैं. सो द फर्स्ट वेंट्रिकल दैट इंक्लूड्स योर राइनोसील. राइनोसील इज द कैविटी ऑफ द रायनसेफेलॉन, दैट इज योर ऑल्फैक्टरी लोब्स. ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी नेक्स्ट कैविटी है वो कौन सी है? हमारी पैरासील्स. पैरासील्स इंक्लूड्स द सेकेंड वेंट्रिकल और वी कैन कॉल देम एज द लेटरल वेंट्रिकल्स. तो हमारे दो पैरासील जो है वो प्रेजेंट होते हैं. हमारा जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और ये मोस्टली वर्टिब्रल ब्रेन में जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो इसकी जो टू कैविटीज हैं लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है उनको पैरासील्स जो है वो कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैविटी इज द third cavity called as the diocele. So diocele is the cavity of the diencephalon, and the diencephalon cavity, that is the diocele, is connected to the paracele with the help of a foramen called as the foramen of Monro, which I have shown you earlier. Now the next is last your fourth cavity is the myocele. ये वाली cavity जो है आपकी fourth cavity, this is your fourth ventricle, योर मायोसील. ठीक है, ये डायोसील आ गई आपकी थर्ड कैविटी, दैट इज योर थर्ड वेंट्रिकल, एंड योर मायोसील इज द फोर्थ वेंट्रिकल. तो ये जो आपकी डायनसेफेलॉन की डायोसील है ये मायोसील से जो है वो कैसे कनेक्टेड होगी? इट इज कनेक्टेड बाय अ लॉन्ग कैविटी कॉल्ड एज द आइटर और द एक्वाडक्ट, सिल्विस ऑफ द एक्वाडक्ट. तो ये जो है आइटर बेसिकली ये किस में आती है? आपके मिड ब्रेन में. ठीक है, तो हमारे चार ही कैविटीज हैं मेनली. फर्स्ट इज द राइनोसील फर्स्ट वेंट्रिकल, दैट इज द पैरासील सेकंड वेंट्रिकल और द लिटिल वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल इज द डायोसील, एंड द डायोसील दैट इज द part of the forebrain is connected to the hindbrain with the help of a long cavity called as the aqueduct of Sylvius or Iter, जो बीच में आएगी. ठीक है, तो इसे हम कैविटी नहीं कहते क्योंकि बहुत सारे वर्टिब्रल ब्रेन में जो है वो बहुत छोटी सी होती है. तो एज इट इज जो है वो कैविटी ये अपने आप में नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंट कैविटीज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल ब्रेन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट meninges, now meninges are what? The different layers that are present in case of the brain. अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव ब्रेन की, जैसे कि साइक्लोस्टोम्स ऑफ फिशेस का ब्रेन है, उसमें आपकी सिंगल जो है वो कवरिंग प्रेजेंट है कॉल्ड एज द मैनिक्स प्राइमिटिवा. ठीक है, और ये जो है वो इसके इट पोजेस द पेरीमेनिंजियल स्पेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द मैनिक्स प्राइमिटिवा और अप द क्रेनियल कैविटी. अगर ये हमारा ब्रेन है तो इस ब्रेन के
ऊपर क्या आएगा, हमारा स्कल आ जाएगा जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इसकी जो है इन दोनों के बीच में एक जो है वो स्पेस रहेगा जिसे हम पेरीमेनेंजियल स्पेस बोलेंगे। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सिंगली हमारी कवरिंग है और उसे हमने क्या है मैनिक्स प्रिमिटिवा कहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्रेन ऑफ द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स। इन तीनों के ब्रेन की बात करें तो उसमें जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। इनर इज द पाया अरेक्नॉइड एंड द आउटर मोस्ट इज द ड्यूरा मैटर। ठीक है। If we talk about the mammalian brain, there are 3 membranes present, pyometer, arachnoid and the dura mater। ठीक है, तो ये अगर हम डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। ये आ गया आपका मैमेलियन ब्रेन, ये आ गया देखिए आप नीचे हमारा मैमेलियन ब्रेन है। ये आ गई हमारी पायामीटर, पायामीटर के बाद आ गई आपकी एरेक्नॉइड और एरेक्नॉइड के बाद आ गई ड्यूरामीटर। तो पायामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है इट इज कॉल्ड एज द सबड्यूरल स्पेस, and the space between the dura mater and the arachnoid is this is called as your subdural and this is your subarachnoid space। ठीक है, जबकि जो हमारा ब्रेन और पायामीटर जो है उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इट इज फ्यूज्ड विद इट। सो दीज आर द डिफरेंट मैनेजेस। तो साइक्लोस्टोम और फिशेस के केस में एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी ब्रेन की कवरिंग। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव के केस में 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, पाया अरेक्नॉइड and the dura mater, whereas in case of the mammals the 3 membranes are present called as the pyometer, arachnoid and the dura mater, right? Now we will study the comparative account of the brain of the different animals।